मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि 1857 की क्रांति में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। मैं बताऊंगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। मैं बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बाद जो मेन डिसीजन मेकर था वह बंदा मुसलमान था। भारत में हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं हुआ करता था। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আপনারা ভারতবর্ষে একসময় থাকা হিন্দু মুসলিমের একতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া দেশের যে সকল ব্যক্তিরা নিজেদেরকে দেশভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে মুসলমানদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বদনাম করার চেষ্টা করে তাদের জন্য এই ভিডিওতে উচিত জবাব রয়েছে। তাই ভিডিওটি আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। প্রিয় বন্ধুরা, বর্তমানে দেশে অন্ধবিশ্বাসী বা অন্ধভক্তরা নিজেদের আসল দেশভক্তের পরিচয় দিয়ে মুসলমানদেরকে দেশের প্রতারক বলে, মুসলমানদের বদনাম করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে সীমান্ত পার করে চলে যেতে বলে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস জুড়ে মুসলমানদের ভূমিকা ও অবদানের কোনো তুলনা নেই। মুসলমানদেরকে দেশের প্রতারক বলে, নিজেদেরকে দেশভক্তের পরিচয় দেওয়া ব্যক্তিরাই আসল অর্থে দেশের প্রতারক। আর এ কথাগুলো আমার নয়, এ কথাগুলো একজন হিন্দু ভাইয়ের কথা, যিনি হিন্দু মুসলিমের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতে ইচ্ছুক নন, যার কাছে ধর্মের পার্থক্য বলতে কিছুই নেই এবং যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং বর্তমানেও ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদানগুলোকে অতি গর্বের সাথে সজোরে বা উচ্চ গলায় স্বীকার করেন। তিনি হিন্দু মুসলিমের একতার বিষয়ে বিশ্বাসী এবং এটা নিয়েই তিনি কাজ করে থাকেন। জি হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি কথা বলছি একজন সৎ, বিবেকবান ও সম্প্রীতিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনকারী হিন্দু ভাই রবিকান্ত ভারতী সম্পর্কে। তিনি তার পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ভারতবর্ষে একসময় বিরাজমান থাকা হিন্দু মুসলিমের একতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইতিহাস তুলে ধরেছেন, যা দেখার এবং শোনার পর মুসলমানদেরকে দেশের প্রতারক ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের দেশের আসল ভক্ত বলা ব্যক্তিরা মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজে পাবে না। রবিকান্ত ভাইটি 1857 সালে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধে মুসলমানদের অবদান এবং সেটাতে মারা যাওয়া মুসলমানদের সম্পর্কে কথা বলেছেন। 1919 সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদের শহীদ হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনো যুদ্ধে 10 জন লোক মারা যায় তার মধ্যে 4 জনই মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে। তাছাড়া তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক সময় প্রত্যেক সরকার গঠনে মুসলমানরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করেছে। এরপর তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা এবং অন্ধভক্ত বা অন্ধবিশ্বাসী যারা দেশকে আসল ভক্ত বলে নিজেকে প্রমাণ দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলেছেন, যা আপনারা তার মুখ দিয়েই শুনুন। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা তার ভিডিওটি দেখুন। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें कि अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज अपने आप को राष्ट्रवादी तो देशभक्त घोषित कर रहे हैं। मैं बता दूं, यह देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ये सावरकर और गोलवालकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि 1857 की क्रांति में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। मैं बताऊंगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड में कितने मुसलमान शहीद हुए थे। मैं बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बाद जो मेन डिसीजन मेकर था वह बंदा मुसलमान था। भारत में हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं हुआ करता था। यह अंतर दीमक की तरह काटते 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 आज भारत को इस तरह से नफरत भारत में फैला दिया गया है। आप सभी को बता दें दोस्तों, शुरुआत होती है 10 मई 1857। मेरठ के सैनिक विद्रोह करते हैं, 4000 सैनिक, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक रहते हैं। आपको बता दें, इसके पश्चात दिल्ली के लाल किले के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों गांव के लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसमें जाटो भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। वे लाल किले के पहले दीवाने खास में, फिर दीवाने आम में जाते हैं, फिर दीवाने खास में जाते हैं और बहादुर शाह जफर से जाके कहते हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। सोचिए, 1857 की क्रांति के लीडर का नाम सोचिए। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, हीरा सिंह, ये सब लोग थे। और 80% हिंदू हथियार के साथ 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए उतरा था और 20% मुसलमान उतरे थे हथियार के साथ। सोचिए, अगर भारत हिंदू मुस्लिम में अंतर होता तो ये लोग साथ में लड़ने के लिए अंग्रेज और फिरंगियों से उतरते नहीं और हिंदू राष्ट्र ही भारत को बनाना होता तो 80% हिंदुओं के हाथ में हथियार था, 20% मुसलमानों को मार देते और रानी लक्ष्मीबाई को बना देते राजा या रानी बना देते, या जो है तात्या टोपे को भारत का राजा बना देते। लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं किया। इन सभी राजाओं ने मिलके बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना। क्यों? क्योंकि ये लोग कह रहे थे भारत मतलब मुगल और मुगल मतलब भारत, मतलब भारत को रिप्रेजेंट मुगल किंग करता है। और इन सभी ने बहादुर शाह जफर को हेड बना के और इनके अंडर में लड़ाई लड़ी। अब रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे बहादुर शाह जफर के अंडर में लड़ रहे थे, एक मुसलमान के अंडर में। क्या तुम लोग इन्हें भी देशद्रोही कहोगे या देश के गद्दार तुम स्वयं हो? यह अपने आत्मा से सवाल करो। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शहादत में कितने % मुसलमान शहीद हुए थे। सोचिए, 20% मुसलमान लड़ रहे थे,
और जो शहादत हुई 100 में अगर 10 लोग मरे तो उसमें 4 मुसलमान मरे और 6 हिंदू सिख ये सब मिला के मरे। मतलब आप समझ लीजिए कि मुसलमानों ने कितने जोर शोर से जी जान लगा के लड़ाई लड़ी कि 40% मुसलमान मारे गए। अब जो अंधभक्त है, गोबर भक्त है, वो क्या लॉजिक देंगे कि इन 4 लोगों के 10 में 4 लोगों के शहादत की वजह से आजादी नहीं मिली, ये जो 6 लोग हिंदू जो शहीद हुए उनके वजह से आजादी मिली, ये जरूर ये बात बोलेंगे। तो इनको मैं जवाब दे दूं, ये लोग वैसे ही गोलवालकर की बात पे चलते रहते हैं। गोलवालकर ने कहा था कि जो लोग शहीद हो रहे हैं अंग्रेजों से लड़ते हुए वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, मर्दाना कार्य कर रहे हैं, मर्दानगी वाला कार्य कर रहे हैं, और जो लोग डर से घुटने टेक दे रहे हैं वे लोग खराब कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात बोलता है कि लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं इन शहीदों को भी हमें इज्जत देने का आदर्श मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए आदर्श मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शहीद फेल हो गए जिस कार्य को ये लोग कर रहे थे उसमें। सोचिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग पहले ही फांसी चढ़ गए हैं और ये लोग फांसी जो चढ़े हैं देश आजाद नहीं हुआ था। मतलब इनका कार्य अगर असफल रहा तो इनका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं गोलवालकर के अनुसार। आप सभी को बता दें दोस्तों, एक पत्थर को 100 बार ठोकोगे और 100वें बार में टूटेगा तो 99 बार जो मारा गया है धक्का उससे वो कमजोर हुआ है। 100वें ठोकर को ही केवल गांधी जी या तमाम लोग आजादी दिलवाए उनको भी ये लोग गाली देते हैं, जो शहीद हुए उनको भी ये लोग गाली देते हैं। पता नहीं इनके रगों में किस चीज का खून दौड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता से अंग्रेज इतना परेशान हो गए थे कि हासी हरियाणा का एक जगह है, वहां 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था हुकुमचंद जैन और दूसरे का नाम था मुनीर बेग। इन दोनों को, ये दोनों प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के और मैथमेटिक्स के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है। जाके देखो, अंग्रेज जो भी होता था ना प्रत्येक दिन शाम को रिपोर्ट लिखते थे। इसके वजह से वो सारा रिपोर्ट अगर पढ़ा जाए तो युद्ध में पर डे क्या हो रहा है पता चल जाता था। अंग्रेज जो है उनके दस्तावेज पढ़ने से पता चलता है कि ये दोनों लोग अरबी, फारसी, मैथमेटिक्स, संस्कृत में महारत हासिल था। इन दोनों को फांसी होती और फांसी होती और अंग्रेज कहता है तुम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, रुको मैं सबक सिखाता हूं। जो मुनीर बेग है इनके चिता को आग लगाता है और जो हुकुमचंद जैन है उनको कब्र में दफनाता है और कहता है तुम लोगों के धर्म के अनुसार मोक्ष मिलेगा जलाने और गाड़ने से, तो अब उल्टा कर दिया, लो मोक्ष को प्राप्त करो। जी हाँ, अगर हिंदू धर्म क्या है, आपका कर्मकांड नहीं हुआ, अगर राख को नदी में नहीं फेंका गया, वो कर्मकांड नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसी मान्यता है। तो अंग्रेज उसी पे कहा कि तुम लोगों अब मुक्ति नहीं हो पाओगे और इस तरह का घिनौना कार्य अंग्रेजों ने किया। मुनीर बेग के चिता में आग लगा दिया और हुकुमचंद जैन जी को कब्र में दफना दिया। बात करते हैं दोस्तों अयोध्या की। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता इतना प्रकांड था, इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहां मुंगी खानी पड़ी और अवध, आपको बता दें, बुरी तरह से अंग्रेज हार गए थे। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बात करें 2 लोगों का। एक आदमी है हनुमानगढ़ी के पुजारी जिनका नाम था रामचरण दास और दूसरे व्यक्ति हैं मौलाना अमीर अली। इन दोनों को फांसी की सजा दी जाती है और फांसी की सजा देने के पश्चात इनका जो है चमड़ा जो है खोल लिया जाता है और चमड़ा निकाल के इनके डेड बॉडी को इमली के पेड़ पे टांग दिया जाता है और इनके डेड बॉडी को इमली के पेड़ पे टांग के अंग्रेजों का निशाना रहता है, इशारा रहता है कि और करो हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तुम लोगों का अंजाम यही होगा, तुम लोग साथ आओगे तो साथ टांगे जाओगे। अंग्रेजों ने इस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया। बात करते हैं अप्रैल 13, 1919। दोस्तों इसी दिन जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आपको बता दें जालियांवाले के लीडर कौन थे। एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुन और दूसरा थे डॉक्टर सत्यपाल। ये हिंदू मुस्लिम, सोचिए, एक सत्यपाल जी, एक सैफुद्दीन जी, ये लोग जालियांवाला बाग का जो आंदोलन है उस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है। 13 अप्रैल को जालियांवाले बाग में इनके गिरफ्तारी के विरोध में मीटिंग जुटता है और उसी मीटिंग में जनरल डायर आता है और हुक्म दे देता है गोली चलाओ और पूरे के पूरे लोग भून दिए जाते हैं। हालांकि मरे तो हजारों में थे, लेकिन जानते हैं आज लोग मरते हैं 50 तो सरकार दिखाती है 10। उसी तरह से उस वक्त भी लोग हजारों में मरे थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा जो है, सरकारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 380 लोग मरे थे। बहुत लोग कहते हैं 379, बहुत लोग कहते हैं 381। एनीवे, ये लगभग 380 लोग जो मरे थे, इसमें मुसलमान कितने थे? 61 मुसलमान थे। काश्मीरी मुसलमान कितने थे? 21 काश्मीरी मुसलमान। सोचिए, 61 नॉर्मल मुसलमान, 21 काश्मीरी मुसलमान, कितना हो गया? टोटल 82 मुसलमान जो है इसमें शहीद हुए थे। सिख 94 सिख शहीद हुए थे और लगभग 220 हिंदू के आसपास, 200 के ऊपर हिंदू शहीद हुए थे। एनीवे, जालियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह पानी पिला रहे होते हैं और जब कांड होता है तो 20 वर्ष के उधम सिंह जब ये चीज को देखते हैं, वो प्रण ले लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया है उसको मौत के घाट उतारें। उधम सिंह पहुंच जाते हैं लंदन और जाके वहां माइकल ओडायर को मारते हैं गोली और गोली मारने के पश्चात उनके शब्द सुनिए, वे पकड़े गए और 10 दिन तक पुलिस उनका नाम नहीं जान पाया।
क्यों पुलिस पूछता है इनका नाम? तो ये अपना नाम क्या बताते पता है? राम मोहम्मद सिंह आजाद। अब पुलिस ने इनका पासपोर्ट चेक किया, उसमें भी राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से इन्होंने पासपोर्ट बनाया था। सोचिए, राम मतलब हिंदू, मोहम्मद मतलब मुसलमान, सिंह मतलब सिख और आजाद मतलब हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी लोग मिलके आजादी चाहते हैं। 1940 में यह मैसेज उधम सिंह ने दिया। सोचिए, 1940 में बदला लिया, 1919 का बदला 1940, 21 वर्ष इंतजार करके उधम सिंह ने बदला लिया। उधम सिंह मरने के पहले वो कहे हैं कि अगर आप मेरे दोस्त हो, मेरे वेल विशर हो, तो मुझे उधम सिंह मत कहना, मुझे क्या कहना? मुझे राम मोहम्मद सिंह आजाद कहना। तो सोचिए, भारत में इस तरह का सेकुलर व्यक्ति थे। आज अंधभक्त उधम सिंह जब बताते राम मोहम्मद सिंह, तो ये लोग बोलते कि ये आतंकवादी हैं, तो ये सेकुलर हैं, तो इनको भी गाली देना शुरू कर देते ये अंधभक्त, भले ही आज इनको माला पहनाते हैं। एनीवे, आइए बात करते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड क्या हुआ आपको पता है? कुछ अंग्रेजों को थाने में जला दिया गया। गांधी जी ने हिंसा का इस्तेमाल हुआ तो गुस्सा हुए, और गांधी जी जब गुस्सा हुए तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले। जब चौरी चौरा हत्याकांड में पता करने लगे कि कितने लोग मारे हैं और इसमें टोटल जो है फांसी हुई थी 17 लोगों को। 17 लोग जो शहीद हुए थे उसमें 7 मुसलमानों का नाम आता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के जो भी मशहूर गाने हैं वह गाने आज भी उर्दू में अवेलेबल हैं, उर्दू के गाने मशहूर हैं। एनीवे, कमांडर इन चीफ कौन था सुभाष चंद्र बोस के बाद? जो मेन लोग थे, सबसे मेन डिसीजन मेकर, उनका नाम था कर्नल जमन कियानी। कर्नल जमन कियानी एक मुसलमान थे और ये जो है सुभाष चंद्र बोस के बाद आजाद हिंद के यही हेड थे। इसके बाद कौन था? कर्नल एडी लॉन्गलंदन, केएल भोसले, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर। इसके बाद थे मेजर प्रकाश, लेफ्टिनेंट जेएस ढिल्लो, लेफ्टिनेंट पीके सैगल। बात करें दोस्तों कि आजाद हिंद फौज में अभी अमेरिका लगभग 7-8 साल पहले महिलाओं को रेजिमेंट बनाया, भारत भी 3-4 साल पहले बनाया, लेकिन आजाद हिंद फौज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक कैडर बन गया था और उसमें महिलाएं भाग भी ली और वे महिलाएं लड़ी भी। आपको जान के बाद आश्चर्य होगा। तो आजाद हिंद फौज में भी आप देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज बना रहे थे तो जो देश के जो महारथी ये बोलते हैं सावरकर 100 से ज्यादा कैंप चला रहे थे, और वह कैंप इसलिए सावरकर चला रहा था कि अंग्रेजी सेना में हिंदू भर्ती हुई, और अंग्रेजी सेना में 1,10,000 हिंदू भर्ती हुए। और उद्देश्य क्या था यह भर्ती का उद्देश्य था कि जो पूरब के तरफ से, मतलब म्यांमार के तरफ से जो भारत पे हमले हो रहे थे वहां पे निपटना। और ये 1,10,000 जो हिंदू लड़ रहे थे, आजाद हिंद फौज ही पूरब से बर्मा की तरफ से अटैक कर रहा था, और वो आजाद हिंद फौज के कितने लोगों को इन लोगों ने शहीद कर दिया। अब ये अपने आप को देश के असली भक्त कहे, ये देश के गद्दार बोले जाएंगे। ये सेना में भर्ती करवाने के लिए मोटिवेट करके आजाद हिंद फौज के लोगों को शहीद करवाना, यह किस तरह की देशभक्ति है? दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने बुलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने पकड़ के सबको जेल में ठूसने लगे और भारत में कांग्रेस बैन हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई, भारत की सभी बड़ी बड़ी पार्टियां बैन हो गई। आपको पता है कौन पार्टी बैन नहीं हुआ था? मुस्लिम लीग बैन नहीं हुआ था, हिंदू महासभा बैन नहीं हुआ था, आरएसएस बैन नहीं हुआ था। बैन होगा भी क्यों? अंग्रेजों की चटुकारिता करोगे, अंग्रेजों जो चाहते हैं वही कार्य करोगे, तो बैन क्यों करेंगे? एनीवे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आप सभी को बता दें साथ मिलके कोएलिशन गठबंधन में सरकार चलाया है। आपको सुन के यह बात शायद आश्चर्य हो रहा होगा। जी हाँ, ये कहां कहां चलाया है? सिंध में चलाया, बंगाल में चलाया, और जो वेस्ट फ्रंटियर जो है वो 3 जगह पे इन लोगों ने सरकार चलाया। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बहुत बड़ा हिंदुत्व आइकन बनते हैं 370, उस पर भी बात करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे वो मुस्लिम लीग के सहयोग से बने थे। सोचिए, मुस्लिम लीग के सहयोग से एक बंदा बनता है मुख्यमंत्री। उस वक्त मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था आपको बता दें? मुख्यमंत्री को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और बंगाल का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, और वह मुस्लिम लीग के सपोर्ट से सरकार बनी। आप इसी से पता चल जाता है कि असली देशभक्त कौन है। क्या देश के मुसलमान जो सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिला के चले वे जो है देशभक्त नहीं थे, या ये जो सावरकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग थे ये देशभक्त नहीं है? आप ही बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी कंधे से कंधा मिला के, क्या ये लोग देशभक्त नहीं थे? कि देशभक्त जो है ये नफरतबाज नहीं?
आप ही लोग बताइए और बताइए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। बहुत প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা তার ভিডিওটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন তার বলা কথাগুলো কতটুকু যুক্তিসম্মত বলে আপনি মনে করেন। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আর হ্যাঁ, আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।